Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we don't address company-specific queries. The numbers to call us on are 2331-4444, 2371-7106 and 2342-1050. My name is V. Ravi Kumar and with me is my Hindi co-anchor Manoj Pathak. नमस्कार। मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी खबरों को लेकर हाजिर हैं। आज सोमवार है। आज के दिन हमारे कार्यक्रम में आप भी हुआ करते हैं सम्मिलित और हमसे पूछ सकते हैं अर्थनीति, शेयर बाजार या कारोबार से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल। बस ये ख्याल रखिएगा कि हम किसी खास कंपनी या शेयर के बारे में जानकारी आपको नहीं दे सकते हैं। हमसे सवाल पूछने के लिए आप डायल कर सकते हैं 2331-4444, 2371-7106 या 2342-1050। हमारे साथ खबरों पर चर्चा और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आमंत्रित हैं आर्थिक मामलों के जाने माने विश्लेषक शिशिर सिन्हा। शिशिर जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइंस से, जिसे लेकर मौजूद हैं वी रवि कुमार। Domestic stocks witness gains of more than 1%. Sensex finishes above the 60,700 levels. Nifty settles above 18,100 points. Rupee appreciates 36 paise against the US dollar and Brent crude climbs more than 3% to hover around $81 per barrel. घरेलू शेयर बाजार में लिवाली तेज, प्रमुख सूचकांक 1% से अधिक ऊपर आए। सेंसेक्स 60,700 के स्तर से ऊपर पहुंचा। निफ्टी 18,100 के स्तर को कर गया पार। $1 की तुलना में रुपया हुआ 36 पैसे मजबूत। और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $81 प्रति बैरल के आसपास समाचार तैयार किए जाने तक चल रही है। घरेलू शेयर बाजार में आज लिवाली तेज रही। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लगभग 1.4% की बढ़त के साथ बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 847 अंक यानी 1.41% की बढ़त लेकर 60,747 के स्तर पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 242 अंक यानी 1.35% की बढ़त के साथ 18,101 दर्ज हुआ। विस्तारित बाजार पर ध्यान दें तो छोटी और मझौली कंपनियों का प्रदर्शन अच्छा रहा। बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 0.93% की वृद्धि हुई। उधर स्मॉल कैप इंडेक्स 0.5% लाभ में रहा। The Sensex and the Nifty today witnessed gains of around 1.4%. Index of the top 30 companies at Bombay Stock Exchange ended above 60,700 points. The index of the top 50 companies at the National Stock Exchange, known as Nifty 50, closed above the 18,100 level. Both indices climbed amid positive global cues. Sensex rose 847 points or 1.41% to settle at 60,747. Nifty also climbed 242 points or 1.35% to finish at 18,101. In the broader market at the BSE, the mid-cap index rose 0.93% and the small cap index ended 0.5% up. In the Sensex pack, 27 companies posted gains while 3 logged losses. Mahindra & Mahindra was the top gainer as it rose 3.6%, followed by HCL Tech and TCS both indices which added 3.4% each. IndusInd Bank gained 3.1%. On the other hand, Titan declined 2.1% and Bajaj Finserv fell 1.2%. In the sectoral indices at BSE, all the sectors logged gains except consumer durable sector, which declined 0.8%. Tech index gained 2.6%, IT sector rose 2.5%, power sector added 1.8%, and utilities index ended 1.6% up. The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 2,009 companies gained while 1,627 fell. Shares of 163 companies remained unchanged. We have the first caller of this edition online with us. Raja from Lucknow is with us. Raja, welcome to Market Mantra. Please ask your question. जी गुड मॉर्निंग। Good morning. ये जानना चाहते थे, मैंने जो है
सहारा की शॉप में जो है अपना पैसा निवेश किया था 2012-13 में, और उसके बाद 19 में समय पूरा होने के बाद अभी तक जो है वो हमारा जो है बैलेंस प्राप्त नहीं हो रहा है। और बात किया तो बता रहे हैं कि इसके लिए मतलब कुछ अभी आपको और टाइम देना पड़ेगा, तो ऐसा क्या कुछ मतलब हो सकता है कि पैसा जल्दी से मिल जाए मुझे? देखिए राजा जी, आप 2 सोमवार से ये सवाल पूछ रहे हैं अलग अलग एक ही समूह की कंपनियों को लेकर के, और हमने हमेशा आपसे यही कहा है कि चूंकि ये मामला अदालत में है और अदालत के आदेश के हिसाब से इस पर कार्रवाई हो रही है, तो इसीलिए कोई एक आपको एक समय सीमा बताना कि इतने समय सीमा के भीतर आपका पैसा मिल जाएगा, ये मुश्किल है। आप कंपनी से संपर्क में रहें और सेबी से संपर्क में रहें, जिससे कि आपको पता चल सके कि आपके जो समस्या है, आपकी जो परेशानी है, उसका निवारण कब हो पाएगा। नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 36 पैसे मजबूत होकर 82 रुपये 36 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में 0.25% कमजोर होकर 103.62 पर कारोबार कर रहा था। शिशिर जी, बाजार में आज की गतिविधि पर हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे। बाजार में आज अच्छी खासी निवेशकों की लिवाली रही, क्या सब प्रमुख कारक रहे आज की लिवाली के पीछे? देखिए, अगर बाजार को आप आज के कारोबार के नजरिए से देखिए तो एक 2 बातें हैं। पहला ये कि जो नतीजों की शुरुआत हो रही है और उम्मीद ये है कि तीसरी तिमाही बेहतर होगा, कुछ उसका भी एक अंदाजा है, कुछ उसका भी अनुमान है, जिसकी वजह से बाजार में खरीदारी हुई है। दूसरा यह है कि अब एलोकेशन जो विदेशी संस्थाएं हैं, विदेशी संस्थागत निवेशक हैं, वो अपना एलोकेशन का जो है वो सिलसिला शुरू करेंगे। तो उसमें जो शुरुआती संकेत है, उस हिसाब से भारत जैसे जो उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, उसमें ज्यादा पैसे लगाए जाने की बात है। ये दोनों कारण हैं जिसका असर आप देख रहे हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात हमें याद रखनी चाहिए कि बीते कुछ समय में हमने काफी ज्यादा बिकवाली देखी थी, तो एक मौका बना, एक आधार बना जिस पर खरीदारी नए सिरे से हुई है। Another regular caller in this edition is Otanu Saha from Kolkata. Otanu, welcome to Market Mantra. Please ask your question. Good evening, sir. Good evening to everybody. Good evening. Sir, my question is, what is wages and world situation about wages against inflation? Thank you. Atanu, first of all, I think last time you asked a question about hedging, how to go for higher risk or how to improve the risk appetite. My answer is that if you go for the diversification of your investment, that will also help you to provide some kind of hedging or some kind of, you can say, lowering the risk. Now, coming to your next question, which is about the wage and how you think about the inflation. See, at this moment, every country has its own policy in terms of wages, and we have a system where we go by minimum wages, which is followed by industries and various organizations. When we decide about the minimum wages, that is keeping in mind about the inflation. But we also have to think, we also have to consider that whether we are taking the headline inflation or the core inflation. Headline inflation means everything, whether it is food or fuel, and core inflation is headline inflation minus food and fuel inflation, which is a very volatile kind of situation. So for a long-term policy, we go by the core, and for the policy for a short term, we go by the headline inflation. Since wage policy is a long-term policy and it is not possible to adjust every time with the wages, so we follow a system what we call as the dearness allowance. So in organized sector, we have a system of dearness allowance. If we talk about the government sector, it is revised twice in a year, one from July 1 and the second one from the January 1. So, and normally you will see the decision about the DA for the government employees, which is effective from January 1 in the month of March, and effective from July 1, you will see the decision in the month of September or October. So this is the policy which is being followed in India in terms of wage and inflation. आइए चले मुंबई से हमारे साथ हैं फोन लाइन पर हसमुख। स्वागत है आपका हसमुख जी, सवाल पूछें। गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा। Good evening, namaskar. We are approaching a budget very nearly.
So what we can expect basically for our economy and for the growth of our country from the budget? Thanks. See, at this moment, one thing which is very clear that if we have to maintain the higher growth rate, we will have to go for more and more public expenditure, because we all agree that the private investment is not that much. So the key would be the public expenditure. So budget, what we are expecting that it will be expansionary. Expansionary means at this moment the budget size for fiscal year 22-23 was 39.45 lakh crore. So if you take say 7% or 8% or 10% growth, it could go up to say 42 lakh crore or 43 lakh crore. But one thing is very clear that it will be expansionary. Other thing is that more and more people are expecting some kind of relief in terms of income tax, especially those who are participating in new income tax regime. That is one thing which we will have to keep in mind. And the third thing which we have to keep in mind is about the capital gain taxation system for various assets. Because the problem is that there are various regulations for various kind of asset. So there we are expecting some kind of rationalization. So these are the key things which you can think for the budget fiscal year 23-24. Our next caller is from Siliguri. Mr. K.K. Sehgal is online with us. Mr. Sehgal, welcome to Market Mantra. Please ask your question. Good evening, everyone. Good evening. My question is regarding insurance of our deposits and accounts in the banks. There have been some different explanations given in this forum in Market Mantra that the insurance of 5 lakhs is per bank, per head or per account. For example, I have 2 FDs of 5 lakhs each. First name is myself, second is my wife. In the other 5 lakhs, my wife is the first name and I am the second. What is the insurance position in this regard? Mr. Sehgal, these 2 accounts are the joint account? Yeah. Okay. So if these are the 2 joint accounts, that means one with Mr. Sehgal and Mrs. Sehgal and other one with the Mrs. Sehgal and Mr. Sehgal. So these are the 2 accounts. In terms of going into insurance deposit, suppose that in one particular bank, the bank went burst or bank went into bankruptcy, then you will get the 5 lakh insurance for each of the account in your name. So, but if you have 6 accounts with 6 different purposes, that means there are 6 accounts. So there you will get 5 lakh each. Number 1. Number 2, if you have accounts in the 5 branches of same bank and the total is 5 lakh rupees or even more than that, your insurance limit payment will be just 5 lakh rupees. But if you have account in 5 different banks, then you will get 5 lakh each for each of the account in each of the banks. So it is per bank, per head. Per head, and it also depends upon, like, if I have one account in my name, the other account is a joint account with my wife. So that's another 5 lakh. That's another 5 lakh. If the another account with my the first holder is a separate. First holder is a separate. And the third one is that if I have an account with my children also, like there are 3 persons involved into that, then there is another 5 lakh. If there is a business account, then there is another 5 lakh. So different accounts each will be treated as separate account, but it all depends upon that who are the persons into that. यहाँ एक थोड़ा सा और स्पष्टीकरण, मान लें कि 5 हमारे बैंक खाते हैं और बैंक बचत खाता है, यानी सेविंग्स बैंक अकाउंट है, और वो 5 बैंकों में है, तो क्या मुझे 20 लाख रुपए के लिए या 25 लाख रुपए के लिए 25 लाख की यानी मैं बीमित हूँ? आपका 5 बैंक में 5 अकाउंट है जी, बिल्कुल जी, आप 25 लाख के लिए एलिजिबल है। अगर आपके अकाउंट में 5 लाख रुपया या उससे ज्यादा है तो, अगर आपके पास उससे अधिक है यदि बैंक डूबने की दशा में मुझे 25 लाख रुपए हर बैंक से मिलेंगे। हर बैंक में, एक बैंक की 5 शाखा में अगर आपके 25 लाख रुपए सिर्फ आपके नाम पे है तो आपको सिर्फ 5 लाख मिलेंगे। वैसे वो 5 बैंक डूब जाएं अच्छा सिनेरियो नहीं है। बिल्कुल, निश्चित रूप से ऐसी नौबत ना आए भविष्य में कभी। आइए चलें कोलकाता से हमारे साथ हैं ओबी सेठ साहब, स्वागत आपका, सवाल पूछें। हेलो। हाँ जी, जुड़ चुके आप। एक सवाल है, ग्रीन बॉन्ड जो रिजर्व बैंक इश्यू कर रहा है, हाँ, वो ग्रीन बॉन्ड की हम मार्केट में कितना डिनोमिनेशन है ये जानना चाहता है। और मार्केट में म्यूचुअल फंड, ग्रीन बॉन्ड सब माने ट्रेडिंग कर सकता है? ओके, जो सोवरिन ग्रीन बॉन्ड है ये एक नया इंस्ट्रूमेंट है जो पहली बार भारत में लागू किया जा रहा है।
16,000 करोड़ रुपए के टोटल ग्रीन बॉन्ड जारी किए जा रहे हैं। और ये बॉन्ड बिल्कुल आप समझ लीजिए कि जो दूसरे डेटेड सिक्योरिटीज होते हैं, जैसे जिनको हम लोग कहते हैं G-Sec, जो मान लीजिए कि 7.6% 20 इयर्स का बॉन्ड है, वो इसी तरीके का बॉन्ड है। इसकी ट्रेडेबिलिटी भी होगी, यानी कि मार्केट में ट्रेडिंग भी होगी। आप भी इसमें लगा सकते हैं पैसा, हर यूनिट के हिसाब से आपके पास है। और इसमें जो आपका फैसिलिटी है वो RBI डायरेक्ट करके एक वेबसाइट है, जिसके जरिए आप इसमें आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। रहा सवाल कि आपका म्यूचुअल फंड इसमें पैसे लगाएगा कि नहीं, ये कहना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो बैंक हो, इंश्योरेंस कंपनी हो या म्यूचुअल फंड हो, वो इसमें पैसा लगाएंगे। और आपका जो सवाल था क्या ये मार्केट में ट्रेडेबल है, बिल्कुल ट्रेडेबल है। इनफैक्ट 25th January the first option. Yes, first of the option is there. Our regular caller from Thane, Gurunath, is online with us. Gurunath, welcome to Market Mantra. Please ask your question. जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। शिशिर सर को भी नमस्कार। नमस्कार। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन था सर, मैं ये जो शेयर बाजार के जो इन्वेस्टर होते हैं उनका कुछ इन्वेस्टर का उनका इंटरव्यू और आर्टिकल मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, जो डे टू डे परचेस और सेलिंग करते हैं, उन्होंने बोले इतने करोड़ों रुपए कमाए बनाए। तो सर क्या हमें तो सजेस्ट किया जाता है कि लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहिए, तो क्या डे टू डे या वीकली मंथली या तो आगे मतलब लॉन्ग टर्म साल भर के लिए 2 साल भर के लिए एक्चुअली मतलब इन लोग कौन सा टेक्निक यूज करते हैं या फार्मूला की इतना पैसा बनाया हमने? थैंक यू सर। गुरुनाथ जी, सबसे पहली बात कि ये जो टेक्निक आपने पूछा, ये शायद जो फॉर्मूला या जादू जो है उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, ये विशुद्ध सट्टेबाजी की प्रवृत्ति होगी। जो बात आपने पूछी है डेली वीकली, देखिए डेली में आपके लिए एक बिजनेस है या आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं, ये पहले आपको तय करना है। आप सेकंड के हिसाब से आप सौदा कर रहे हैं, बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, काट रहे हैं, आप एक ट्रेडर की तरह लगे हुए हैं। एक इन्वेस्टर है जो कि एक निश्चित समय के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है, मीडियम टर्म के लिए हो सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है, वो आपको तय करना है कि आप किस तरीके के फॉर्म में हैं। तो पहली बात ये धारणा निकाल दीजिए कि किसी ने करोड़ कमाए हैं तो हम भी करोड़ कमा लेंगे, ये संभव नहीं होता है। याद रखिए कि बाजार में एक आदमी कमाता है तो हजारों गंवाने वाले भी होते हैं। हम कमाने वाले की चर्चा पहले कर लेते हैं, गंवाने वाले की चर्चा नहीं करते हैं। आपको तय करना है कि आप किस कैटेगरी में रहेंगे। आइए चलें ललितपुर से रंग्या जी हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। सर रौनक जी है। रौनक जी, स्वागत रौनक जी। नमस्ते सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि सपोज देश में सबसे बड़ी करेंसी 100 रुपए का नोट हो जाए, जो कि अभी 2000 रुपए का है, तो उसके क्या क्या लाभ होंगे या क्या क्या हानियां होंगे? देखिए, दुनिया के तमाम देशों में खासतौर पे मैं विकसित देशों की बात करूं तो लार्जर डिनोमिनेशन की फिजिकल करेंसी नहीं होती है, और यही वजह है कि अब हम लोग डिजिटल करेंसी की बात कर रहे हैं। अभी जो आपके पास नोट है वो 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000 रुपए के हैं। अब 2000 की प्रिंटिंग बंद हो चुकी है, तो अब आपके पास ये सारे नोट चलन में तो है, लेकिन 2000 नोट की प्रिंट नहीं होती है। रहा सवाल विकसित देशों की बात करें तो वहां पर जो लार्जर डिनोमिनेशन होता है वो $100 से या 100 से ज्यादा यूएस में, जैसे यूएस की बात करूं, और यूएस में अगर ये भी कहा जाता है कि अगर आप $100 लेकर के किसी दुकान में जाते हैं तो वो आपको एक बार ऊपर से जरूर देखता है कि ये आदमी कौन है। तो अब रहा सवाल कि नफा नुकसान की बात है। देखिए, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां पर नगद में लेन देन 90% से अभी भी ज्यादा है। तो ऐसे में आप सिर्फ और सिर्फ कहें कि 100 रुपए तक का नोट रखेंगे तो शायद आपके लिए लेन देन थोड़ा मुश्किल तो नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन हाँ, आपके लिए थोड़ी सी उसमें परेशानी बढ़ जाएगी कि आप कितने फिजिकल करेंसी लेकर के जाते हैं। तो जब तक ये जिसको कहते हैं नगद में लेन देन कम नहीं हो, तब तक आप डिनोमिनेशन को नीचे नहीं कर पाएंगे। अगर डिनोमिनेशन नीचे करेंगे तो मार्केट में हो सकता है कि कुछ तरह का एक व्यवधान जो है वो पैदा हो जाए। Next caller is from Bhilai. Ravi Narayan is online with us. Ravi, welcome to Market Mantra. Please ask your question. Thank you, Market Mantra. मेरा सवाल अभी जो आने वाले बजट से रिलेटेड है। मैं एक चीज बोलना भी चाहता हूँ और जानना भी चाहता हूँ कि वर्किंग क्लास जो है अपने देश में करीब करीब 35 से 40 साल तक जो है मेहनत करके जो है टैक्स जो है कंट्रीब्यूट करता है, अपने एक्सचेकर को कंट्रीब्यूट करता है।
उसके बाद रिटायरमेंट के बाद या किसी भी कोई भी परस्यूट हो उसका जो भी प्रोफेशन हो, उसके बाद रिटायरमेंट के बाद भी उससे जो है टैक्स रिकवर करना कहाँ तक अच्छा है? अब इज इट नॉट हाई टाइम कि इस बार गवर्नमेंट सोचे या जो फाइनेंस जो एक्सपर्ट्स हैं सोचें कि कम से कम जो सीनियर सिटीजन हैं उनको पूरी तरह से एग्जम्प्ट करें टैक्स से? थैंक यू। देखिए, सुझाव तो बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है। और अभी के समय में अगर आप इनकम टैक्स का स्लैब देखें तो 3 कैटेगरी है। अगर मैं ओल्डर टैक्स रिजीम पे जाऊं, एक आपका 60 वर्ष तक के लिए, दूसरा 60 से 80 के लिए और तीसरा 80 से ऊपर के लिए। सुपर सीनियर सिटीजन। तो 60 तक के लिए जो मिनिमम आपका लिमिट है वो 2,50,000 का है। 60 से 80 की बात करें तो वो 3 लाख का है और 80 के ऊपर की बात करें तो 5 लाख का है। तो लेकिन जो टैक्स रेट की अगर हम बात करें तो 5, 20 और 30 तीनों में ही जो है वो लगता है। अब उम्मीद ये की जानी चाहिए कि क्या ये अगर स्लैब बढ़े तो शायद लोगों को और राहत मिले। कितना हो सकता है, क्या होगा, ये तो अभी भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है। रहा सवाल कि क्या बुजुर्गों पर से पूरी तरह से टैक्स में माफ कर दिया जाना चाहिए, ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप कितनी कमाई करते हैं। अगर ज्यादा आप कमाई कर रहे हैं और तो आपके लिए एक टैक्स की देनदारी बनती है। अगर आप, जैसे मैंने कहा कि अगर 60 से 80 साल की आपकी उम्र है, आपके लिए 3 लाख रुपए तक की जो कमाई है उस पर आपको टैक्स नहीं देना और 3 लाख से 5 लाख पे 5% है, 5 से 10 पे आपका 20% है और 10 के ऊपर है तो आपको 30% है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इसमें कुछ सुधार होगा। दूसरा जो एक न्यू इनकम टैक्स रिजीम जो है जिसमें आपको कोई एग्जम्पशन आप नहीं लेते हैं, उसमें किसी एज को लेकर के नहीं चलता है। तो अभी तक तो ऐसे कोई संकेत नहीं है, लेकिन हमने कहा ना कि भविष्य के गर्त में क्या है ये कहना भी मुश्किल है। Shishir, you mentioned TCS and the earning season has started off. TCS today reported a profit of 10,846 crore rupees for the third quarter of the current fiscal, growing nearly 4% quarter-on-quarter basis. The company also announced a special dividend of 67 rupees per share and an interim dividend of 8 rupees per share. That's a total of 75 rupees per share. Ahead of its Q3 results, TCS shares closed more than 3% up. संक्षिप्त प्रतिक्रिया इस पर कि ये परिणाम क्या दर्शा रहे एक कंपनी के बारे में और पूरा उस सेक्टर के बारे में? देखिए, अभी के समय में जब ये कहा जा रहा था कि दुनिया के अलग अलग देशों में तकनीक पे लोग खर्च कम कर रहे हैं अर्थव्यवस्था में मंदी की वजह से या अर्थव्यवस्था में गिरावट की वजह से, उसमें अगर एक कंपनी इस तरह के नतीजे का ऐलान करती है तो ये एक सुखद खबर है। अब यहां से चूंकि आज अर्निंग सीजन की शुरुआत हुई है और आप कल देखेंगे कि इन्फोसिस के नतीजे आएंगे, हमारी नजर उस पे होगी गाइडेंस के ऊपर कि इन्फोसिस गाइडेंस क्या देता है। वो गाइडेंस आगे की दिशा जो तय करेगी और फिर जो बड़ी कंपनियां हैं, चाहे मैं एचडीएफसी बैंक की बात करूं या फिर मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करूं, इनके नतीजों पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन अगर कहते ना बोहनी अच्छी हुई है तो उम्मीद करनी चाहिए कि आगे धंधा भी अच्छा चलेगा, बढ़िया चलेगा। उम्मीद करें ऐसा ही हो। दिल्ली से हमारे साथ हैं राकेश। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, सवाल पूछिए। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मैं राकेश बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी, सवाल पूछिए। सर, मैं ये पूछना चाहूंगा, हम मार्केट से गोल्ड परचेज करते हैं तो जैसे आज का रेट जो हमें दिया जा रहा है मार्केट में सरकारी रेट, तो क्या मार्केट में जब परचेज करेंगे तो उस पर क्या हमें जीएसटी वो लगा के हमें देंगे कि हमें वो रेट आप सरकारी रेट जो बताते हैं उसी रेट पे हमें गोल्ड मिलेगा? दूसरा सवाल ये है मेरा, बैंक में फ्रॉड हो जाता है तो हमारे को कितनी सेफ्टी है कि जो हमारे को सिर्फ 5 लाख ही रुपया मिलेगा? अगर हमारा 10 लाख जमा है तो हमारे 5 लाख रुपए फिर वो हमें कब मिल पाएंगे? अगर मैं पहला आपके सवाल को लूं, सोने की जहां तक आपने बात की, पहली बात, सरकारी रेट कुछ भी नहीं होता है, ये बाजार का रेट होता है और बाजार में मांग और आपूर्ति के आधार पर जो है वो कीमत तय की जाती है, तो इसमें कोई सरकारी रेट नहीं होता है। दूसरी चीज, गोल्ड के ऊपर जीएसटी की दर 3% है और इसके अलावा आपको कस्टम ड्यूटी भी आपको देना पड़ता है, इंपोर्ट ड्यूटी जिसको हम लोग कहते हैं, तो वो आपको देना ही पड़ेगा चाहे आप सोना किस भी स्वरूप में आप ले रहे हो। रहा सवाल कि जो आपका बैंकों की सेहत को लेकर के या फ्रॉड को लेकर के जो बातें की जाती है, he meant fraud, although I think he probably intended to say bank health. लेकिन मुझे लगता है कि फ्रॉड में 2 चीजें शामिल हैं। एक तो आपके साथ अगर ऑनलाइन कुछ गड़बड़ी हो जाए,
जैसे क्रेडिट कार्ड में या डेबिट कार्ड में कुछ ट्रांजैक्शंस हो जाएं तो उनके रेगुलेशंस अलग हैं, जहां पर ये होता है कि आप कितनी जल्दी रिपोर्टिंग करते हैं, जितनी जल्दी रिपोर्टिंग करेंगे उतना कम पैसा आपके डूबने के चांसेस होते हैं। रहा सवाल किसी भी बैंक के बंद हो जाने की सूरत में, वहां पर जो नियम है 5 लाख का, हमने अभी कार्यक्रम में इस पर चर्चा भी की थी। एक बार फिर कह दूं कि जो 5 लाख रुपए का है वो आपके प्रति खाते का है एक बैंक में। आइए चलें खबरों की दुनिया में एक बार फिर से लौटते हैं। एशियाई शेयर बाजारों में आज तेजी का रुख देखा गया है। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 2.6% लाभ में रहा। हांगकांग के हैंगसेंग में 1.9% की वृद्धि हुई। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.6% लाभ के साथ बंद हुआ। सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स में 0.9% की वृद्धि हुई। उधर जापान का निक्केई 225 सूचकांक भी 0.6% बढ़त के साथ बंद हुआ। यूरोपीय शेयर बाजार की ओर चलें तो अंतर्दिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक मिला जुला रुख नजर आ रहा था। जर्मनी का डेक्स 0.4% लाभ के साथ चल रहा था। फ्रांस के कैक 40 में भी 0.2% की तेजी दिख रही थी। उधर लंदन का FTSE 100 समाचार तैयार किए जाने तक अपने पूर्व स्तर के आसपास बना हुआ था। Oil prices today climbed more than 3% as China has moved to reopen its borders, boosted the demand outlook and overshadowed global recession concerns. In intraday trade, Brent crude was trading at $81.35 per barrel, while WTI crude price was at $76.35 per barrel. We have Akash from Delhi online with us, probably the last caller. Akash, welcome to Market Mantra. Please put your question. हेलो सर, नमस्ते सर। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे सर कि हमें मेरे बैंक में FD है तो बैंकों के थ्रू हम शेयर मार्केट में देखते हैं। आकाश जी, अपने रेडियो का वॉल्यूम कम कर दीजिए बिकॉज इको आ रहा है। मैं कह रहा हूँ सर, हेलो, बोलिए कि बैंकों के थ्रू सर इन्वेस्ट कर सकते हैं हम? क्या, दोबारा सवाल पूछिए। बैंकों के थ्रू क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं? शेयर मार्केट में। बैंकों के थ्रू शेयर मार्केट में? हाँ जी, हाँ जी। मुझे लगता है कि ये आस्पा के बारे में जानना चाहते हैं, जिसको हम लोग एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अकाउंट कहते हैं। दरअसल आपके पास अगर आप छोटे निवेशक हैं, यानी कि आप 2 लाख रुपए तक का आवेदन करते हैं, तो आपके लिए अनिवार्य है कि आप अपने नेट बैंकिंग से अप्लाई करें, जो कि आपके ऑनलाइन बैंकिंग फैसिलिटी में एक इन्वेस्टमेंट करके टैब होगा। उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आस्पा की आपको फैसिलिटी मिलेगी। जो आपके पास बैंक में पैसे उपलब्ध हैं उसका एक हिस्सा आप जो है वो शेयर बाजार में करते हैं। सेकेंडरी मार्केट की जहां तक बात है, उसके लिए जो ट्रांजैक्शन आपको करना है वो आप इलेक्ट्रॉनिक वे में कर सकते हैं, डिजिटल फॉर्म में कर सकते हैं। प्राइमरी मार्केट में आपके पास आस्पा की फैसिलिटी है। मुझे लगता है शायद इनका सवाल मूल रूप से यही था। आइए अब चलें सर्राफा बाजार। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में फरवरी में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य आज अंतर्दिवसीय कारोबार में 260 रुपए बढ़त के साथ 56,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर समाचार तैयार किए जाने तक चल रहा था। उधर मार्च में आपूर्ति की जाने वाली चांदी भी 100 रुपए बढ़त के साथ 69,250 रुपए प्रति किलो के स्तर पर चल रही थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर ध्यान दें तो न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना थोड़ी सी बढ़त के साथ $1,878.20 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था, जबकि चांदी भी मजबूती बनाती हुई $24.10 प्रति औंस के आसपास कारोबार कर रही थी। बस यहीं पर शिशिर जी, श्रोताओं की ओर से हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। धन्यवाद। Thank you, Shishir, for joining us live in the studio and answering the question of all our listeners. And thank you to all our listeners for asking very sharp and incisive questions. Before we close this edition of Market Mantra, a reminder of the headlines that we covered in this edition. Domestic stocks witnessed gains of more than 1%. Sensex finishes above the 60,700 level. Nifty settles above the 18,100 level. The rupee appreciates 36 paise against the US dollar. And Brent crude climbs more than 3% to hover around $81 per barrel. That's all that we have in this edition of Market Mantra, but our next interactive edition will be on Saturday and thereafter on Sunday, which is a mutual fund dedicated interactive edition. This week, this is the first interactive edition and the last of the 3 in a sequence. Thank you for joining in. Namaskar. Market Mantra.